اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرا العقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیزے اسے صحرا اعظم الدنیا اور عربی الخالی بھی کہتے ہیں۔ العقاف عقف کے جمع ہیں جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لگ و داک بیاباں صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جوں سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل دنیا کے لیے جے عبرت بھی۔ العقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شتاب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار دمدم رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے العقاف میں قوم عاد کے جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کی العقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو عقاف میں ٹھہرایا۔ علامہ جلال الدین سوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمدن بیان کیا ہے۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈھیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو تم ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں ذکرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
प्यारे दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वईज़ व नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाब इलाही से डराते, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीख़ी कुतब में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 वर्ष या इससे भी ज़्यादा दर्स व नसीहत में मसरूफ़ रहे। कौम आद की 13 कबाइल में से लुकमान और खलजान नामी कबाइल नहायत ताकतवर थे और उन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक़ दी और कुफ्र शिरक छोड़कर एक अल्लाह ही की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मजम्मत की और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। उसके बरअक्स दूसरे कबीले खलजान ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर व गौज़ किया और उनमें से अक्सर जल्द ही आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके ईमान ले आए। प्यारे दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक़ पर गामज़न करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। तो बिल आखिर उन्होंने बारगाहे इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूँ बयान किया है। नबी ने दुआ की कि ए परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा कहा पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में फरमाया, ए नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनके ठंडे मीठे और शफाफ पानी से लबरेज चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। चुनाचा देखते ही देखते उनके सरसब्ज़ व शदाब खेत व खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुशहाली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी देखी न जाती थी। आप अलैहिस्सलाम बहुत अफसुर्दा और परेशान रहते और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत व क़ुव्वत में इजाफ़ा फरमाएगा। और देखो, गुनहगार बनकर रो गर्दानी ना करो। कुरान करीम और हदीस मुबारक में तौबा व इस्तिग़फ़ार के बड़े फ़वाइद बयान फरमाए गए हैं। इब्ने माजा और इब्ने दाऊद में हदीस मुबारक है कि जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर फ़िक्र से कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जो उसके वहम गुमान भी नहीं होती। बहरहाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद उस कौम पर कोई असर ना हुआ, बल्कि नहायत ठठाई का मुज़ाहरा करते हुए कहने लगे कि हम माज तेरे कहने पर अपने आबाओ अजदाद के और अपने उन माबूदों को क्यों छोड़ दें। कुरान करीम ने उसे यूँ बयान किया है, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा दीवाना कर दिया है। यार दोस्तों, अज़ाब इलाही की इब्तदाई मराहिल ही में खुशहाली ने कौम आद की हालत अबतर कर दी। चुनाचा उनके सरदारों और दानश्वरों ने उससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर व गोश शुरू कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि पिछली कौमों को जब कभी कोई मुश्किल आ गिरती तो वो उससे निजात के लिए हजाज मुक़द्दस का सफ़र करते और बैतुल्लाह शरीफ में जाकर अल्लाह के आगे आहोज़री करते। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थीं कि उसे अर्ज़ व समा में एक लाफानी कुव्वत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जब नबी और रसूल ये बात कहते तो उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता। कौम आद के सरदारों ने भी यही फैसला किया कि कौम के सरगर्दा अफराद बैतुल्लाह शरीफ जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करें। चुनाचा मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों और दीगर अहम अफराद पर मुश्तमिल 70 अफराद का एक वफ़द हजाज मुक़द्दस रवाना हुआ। उस ज़माने में मक्का मुकरमा पर कौम अमलीक की हुक्मरानी थी, जिसका सरदार माविया बिन बकर था और माविया की वालदा कौम आद से ताल्लुक़ रखती थी। वैसे भी माविया बिन बकर कौम आद की शान व शौकत से बड़ा मरऊब था। चुनाचा उसने वफ़द की बड़ी खातिर मदारत की और उसे बड़े इज़्ज़त व एहतराम से अपने यहाँ ठहराया।
तिबरी की रवायात है कि उस वक्त में दो अफराद मुर्शिद बिन साद और लुकमान बिन लकीम साबी ईमान और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। गालबन उनका ताल्लुक कबीले खलजान से होगा। उन दोनों के अलावा बाकी सब काफिर और बुत परस्त थे। माविया ने उनकी आज़ाद में रक्स व सरवर की महफिल का एहतमाम किया और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराब व शबाब की महफिल में मदहोश रहे। जब उनका क़याम तवील हो गया तो माविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फ़िक्र लाहक हुई। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालों के ज़रिए चंद अशार की सूरत में उन्हें उनके आने के मकसद की याद दहानी करवाई, जिस पर वफ्त को होश आया। तारीख़ी कुतब में दर्ज है कि उस मौके पर वफ्त में शामिल मुर्शिद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं उस पर ईमान ले आओ, लेकिन वो ना माने। यारे दोस्तों, वक्त बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफ़ेद था, दूसरा सियाह और तीसरा सुर्ख। उसके साथ ही आसमानों से निदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनांचे वक्त ने सोच विचार के बाद सियाह बादल को अपने लिए पसंद कर लिया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफ़ेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अबरा सियाह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआओं की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश्क साली ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे पूरी कौम ने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी, लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अज़ाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अज़ाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, नहीं बल्कि दरअसल ये अबरा वो अज़ाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफ़ान है जिसमें दर्दनाक अज़ाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ तबाह कर डालेगा। जब कौम आद ने इस अज़ाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है हम पर बारिश करने वाला। कुरान करीम में अरशाद है कि अल्लाह ने तेज़ आंधी का ये अज़ाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी बाकी ना छोड़ा, ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों के घटाइयों और चोटियों, घरों, मोहल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके ज़रिए कौम आद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा घोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहाँ के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान और ज़मीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ले ली, जहाँ अजाब उन तक नहीं पहुँचा और वो अमन और सुकून से रहे। यार दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा फरमाया है, ताकि कुफ्र व शिरक और गौर व तकब्बुर में मुब्तला लोगों को तंबिया हो। उसके अलावा कुरान करीम की एक सूरत का नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह हूद है। कुरान पाक के 11वें पारे में मौजूद है। ये सूरह मुबारका 123 आयत और 10 रकूआत पर मुश्तमिल है। सूरह हूद मक्की है। ये उस दौर में नाजिल हुई कि जब कुफारे मक्का का जुल्म व सितम अपने अरूज पर था। चुनांचे सूरह हूद में उन पिछली कौमों का तज़किरा है जो अल्लाह के नबियों और रसूलों की तज़कीब करके कहरे अलई का निशाना बनी और तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए इबरत का नमूना बन गई।